Welcome back, dear students, on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh, and today we will going to discuss about our next topic of chapter molecular basis of inheritance. That is most important topic, genetic code. I think number of student heard this term first time. What is genetic code? Genetic code is nothing a special type of sequence of nitrogenous bases that are present on the mRNA. We can say that. Okay. जेनेटिक कोड बेटा कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल टाइप के जो नाइट्रोजन बेसिस का सेगमेंट होता है, थ्री नाइट्रोजन बेसिस का जो सेगमेंट होता है, लाइक वी कैन से दैट AUG स्टार्टिंग कोडान, AUG स्टार्टिंग कोडान, ये बेटा तीन नाइट्रोजन बेसिस का एक ग्रुप होता है mRNA के ऊपर. उसको हर तीन ग्रुप को UAG, ठीक है, ये तीन नाइट्रोजन बेसिस के ग्रुप को ही एक टीआरएनए रीड कर पाता है. ये तीन नाइट्रोजन बेसिस को एमआरएनए के ऊपर से टीआरएनए रीड करता है. दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट और जेनेटिक कोड. इसको जेनेटिक कोड या ट्रिपलेट बोलते हैं. AUG इज ऑलवेज स्टार्टिंग कोडॉन, और इसी कोड के लिए एक सिंगुलर टर्म यूज किया है, इट इज कॉल्ड कोडॉन. कोडॉन मीन्स क्या है बेटा, हम कह सकते हैं कोड क्या होता है. Code is nothing, only we can say that when something or some information come from some other resource. जब बेटा किसी रिसोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन आती है तब उसको हम बोलते हैं कोड. कोड वर्ड के फॉर्म में है, ऐसा कुछ है तो उसको कोड बोलते हैं. जस्ट लाइक दैट our DNA make specialized informations in the form of the messenger RNA. That's why it is called messenger. Means we can say that during the process of transcription, one genetic material form another genetic material, because RNA is also a genetic material in some viruses and other organisms, not other only viruses. So here we will start from the basics. Okay, genetic code, a special type of code that is present on the mRNA. हर तीन नाइट्रोजनस बेस के कोड को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं, और इन्हीं तीन नाइट्रोजन बेस को हमारा जो टीआरएनए आएगा, अभी आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ट्रांसलेशन तक पूरा प्रोसेस ही आपको समझ में आएगा. इन्हीं तीन जो नाइट्रोजन बेसिस के ग्रुप होते हैं उनको टीआरएनए क्या करता है, ये टीआरएनए है, नीचे एमआरएनए, दिस इज टीआरएनए. और बेटा यहाँ पे जब एक कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो जाएगी, ये तीनों इसके आपस में मिलेंगे तो टीआरएनए के ऊपर एक अमाइनो एसिड लगा होता है. दैट्स वाई टीआरएनए इज कॉल्ड एज अडाप्टर. तो अमाइनो एसिड यहाँ पे छोड़ेगा और चला जाएगा, फिर से देखेगा, फिर से नया टीआरएनए आएगा, कॉम्प्लीमेंट्रिटी कंप्लीट हो जाएगी, अमाइनो एसिड छोड़ेगा, चला जाएगा इनके साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के. फिर से क्या होगा, फिर से तीन का एक ट्रिपलेट सर्च करेगा नया टीआरएनए, और फिर से यहाँ पे एक अमाइनो एसिड छोड़ेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बना के चला जाएगा. धीरे धीरे अमाइनो एसिड्स का एक चैन बनता चला जाएगा. दिस चैन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज polypeptide chain, because number of peptide bonds are formed there. That's why it is called polypeptide chain. Ultimately this change their conformation and converted into a functional protein. That's why we can say that a DNA is responsible for the formation of a particular protein, and this protein is formed with the help of the two mediators. One is called as three mediators. We can say that there are three type of RNAs. Number first, messenger RNA or mRNA that take the information from the DNA to the cytoplasm. Another that is called as rRNA or ribosomal RNA, responsible for the formation of the ribosome with the help of protein. And third one, last one is called as tRNA, or also called as adapter RNA, that adopt the amino acid, and it is responsible for the scanning the genetic code on the mRNA. Okay, तो बेटा हम डिस्कस करते हैं बेसिक से. During the replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Means a nucleic acid means जैसे कि हम देखते हैं DNA को कॉपी करके RNA बनाता है, DNA को कॉपी करके RNA बनता है. Means one genetic material copied into the another nucleic acid, or one nucleic acid copying into the another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. ओके, जैसे बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कोई भी 5' to 3' या 3' to 5'
डीएनए दे दिया है, तो इसके ऊपर कौन सा आरएनए बनेगा, किसी भी स्टैंड के ऊपर बना हुआ, अगर यहाँ पे इन्होंने हमको दे दिया AGUCCG और इसके लिए पूछ लिया है इसके लिए एमआरएनए क्या होगा, तो हम सिंपली बता सकते हैं इसके लिए एमआरएनए क्या होगा। ए की जगह पे एडेनिन, एडेनिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। ग्वानिन है तो ग्वानिन की जगह पे बड़ा 5' बन रहा होगा, ये 3'। ग्वानिन की जगह पे एमआरएनए बन रहा है। ग्वानिन की जगह पे साइटोसिन, यूरेसिल की जगह पे एडेनिन आ जाएगा, फिर ग्वानिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। दिस इज द सेगमेंट ऑफ द mRNA. So we can say that up till now means transcription and replication are based on the complementarity. लेकिन बेटा अब आगे देखते हैं क्या होता है। The process of translation requires transfer of the genetic information from a polymer. ट्रांसलेशन के केस में बेटा हम देखते हैं क्या होता है। ट्रांसलेशन में बेटा क्या होता है, ट्रांसलेशन के केस में एक mRNA मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर के आया है उसको रीड करने के बाद में मीन्स ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ पॉलीमर है। वी कैसे है ना, देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ, दिस इज न्यूक्लिक एसिड, नाउ पॉलीपेप्टाइड मीन्स ये कैसे कह सकते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपना इंफॉर्मेशन एक पॉलीपेप्टाइड को बनाने में ट्रांसफ़र करता है। इन द केस ऑफ ट्रांसलेशन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बेटा क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि बहुत सारे पॉलीमर से, न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे पॉलीमर से मिलके बने होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीपेप्टाइड बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से आप अमाइनो एसिड से जुड़ के बने होते हैं, दैट्स व्हाई द प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। तो बेटा ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड transferred or form a polypeptide chain. Okay, I think this is understandable for each students. Okay, so genetic information for a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acids, or we can say then polynucleotide. Neither does any complementarity exist between the nucleotides and amino acid. Okay, we can say that amino acid means this is a typical amino acid. बट अमीनो एसिड में क्या होता है, एक अल्फा कार्बन होता है, इससे एक तरफ से COH ऐड होता है, एक तरफ से अमाइन ग्रुप हो सकता है, अमोनिया होता है, नीचे की तरफ H होता है और ऊपर की तरफ वेरिएबिलिटी होती है। अगर यहाँ पे सबसे सिंपल बनाए H तो इसको हम ग्लाइसिन बोल देते हैं, ऐसे इसको हम यहाँ पे R लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐड हो सकता है, वेरिएबल ग्रुप। तो एक अमीनो एसिड में इतना सब कुछ बिल्कुल सेम होता है और आगे ग्रुप्स में वेरिएबिलिटी होती है। ओके, सो आगे बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा और अगर हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स और अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड तो हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ होता है, OH, अगर हम आरएनए की बात करें OH, और यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड होगा, C के साथ में फॉस्फेट ऐड होगा, H3PO4 मीन्स PO डबल बॉन्ड के साथ एक O होगा, ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ O होगा, इसके ऊपर माइनस लगा हुआ होगा, यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, CH2 होगा। तो ये एक होता है नहीं, ये एक आरएनए बनाया हमने। हाँ, अगर यहाँ पे O नहीं होता तो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड हो जाता, मतलब डीएनए हो जाता। O है तो ये आरएनए है, मीन्स आरएनए में 2' पे भी OH होता है। लेकिन इन दोनों के स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यही दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए के पास सारा का सारा सिस्टम ही, कैसे दोनों के अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी डीएनए ने ऐसे ऐसे सिस्टम डेवलप किए कि पहले अपने आप को 3 आरएनए में चेंज किया, mRNA, rRNA एंड tRNA। फिर कैसे तीनों को आपस में कोऑर्डिनेट करने के बाद में उससे प्रोटीन बनाता है। दिस इज द मशीनरी दैट वी लर्निंग इन दिस चैप्टर। सो information of a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid, neither does any complementarity exist within the nucleotide and amino acid। बेटा देखो, अभी हमने न्यूक्लियोटाइड भी बनाया, अमाइनो एसिड भी बनाया, लेकिन उनके दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं थी। नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थियोरेटिकली, और ना ही हम इनको थियोरेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं, थियोरेटिकली बता सकते हैं कैसे एक दूसरे से बनते हैं। देयर एग्जिस्टेड
ample evidence though to support the notion that change in the nucleic acid or genetic material were responsible for the change in the amino acid in the proteins. ओके अगर बेटा न्यूक्लिक एसिड में चेंज कर दिया जाए तो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी हमने बोला कि डीएनए क्या करेगा, डीएनए बेटा क्या करेगा, स्पेशल टाइप का आरएनए बनाएगा. क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा. मीन्स हमने देखा ये आरएनए है और आरएनए के बीच ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुआ AUG, तो हमने ऐसे देखा है. तो अगर यहाँ भी डीएनए में कोई चेंज आता, अब ये AUG बेटा, AUG किसके लिए, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, इट इज़ मेथियोनिन. अब ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है, याद रखेंगे हमेशा, क्वेश्चन बहुत बार आता है. AUG कोड फॉर द मेथियोनिन अमाइनो एसिड. बेटा किसका कोड है ये, mRNA के ऊपर एक ट्रिपलेट कोडान है, जेनेटिक कोड है mRNA के ऊपर, जो किसके लिए है, मेथियोनिन के लिए है. अगर डीएनए में थोड़ा चेंज आता तो आरएनए में चेंज आता, मीन्स एक ही जगह पे कहीं टी आ जाता. थोड़ा डीएनए में चेंज आया तो उससे mRNA में एक ही जगह पर टी आ गया. अब यहाँ पे पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा. मीन्स जो प्रोटीन में जहाँ मेथियोनिन होना चाहिए वहाँ मेथियोनिन नहीं है, कोई दूसरा अमाइनो एसिड आएगा तो बेटा वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाएगा. इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर देखते हैं, बहुत बड़ा सा डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन होता है. ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बेटा जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें क्या होता है, 508 नंबर से एक फेनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड डिलीट हो जाता है. अगर जो प्रोटीन चाहिए होती है हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसमें जैसी 508 नंबर से एक अमाइनो एसिड जिसको हम फेनाइल एलेनिन बोलते हैं वो डिलीट हो गया तो पर्सन को एक डिसीज़ हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. तो बेटा ये पर्टिकुलर नोट जो यहाँ पर उन्होंने हमको लिख करके दिया है, इसका यही मतलब था कि क्या है, देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड. बेटा क्या लिख के दिया इन्होंने, चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द अमाइनो एसिड. आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन, कि जैसे ही न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंज आएगा तो सिंपल सी बात है प्रोटीन के अंदर तो चेंज आना ही आना है, 100% चेंज आएगा. कुछ बेटा होते हैं ऐसे चेंज जिनको हम साइलेंट चेंज बोलते हैं, म्यूटेशन पढ़ेंगे चल के जेनेटिक कोड में, तो वहाँ पढ़ेंगे साइलेंट. कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो जो ट्रिपलेट कोड होते हैं किसी एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, बिकॉज ऑफ हम अभी देखेंगे देयर आर 64 कोडॉन्स. कोडॉन बेटा 64 होते हैं और वो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड के लिए. तो कुछ तो ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो एक से ऐसे कोड होते हैं जो एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, वो अभी हम देखेंगे चल करके. This lead to the proposition of the genetic code that could direct the sequence of amino acid during the synthesis of proteins. Okay, हम कह सकते हैं कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो टोटल रेगुलेशन बेटा उसका कौन सा रखता है, जेनेटिक मटेरियल ही रखता है कि हम किस प्रोटीन को बनाने जा रहे हैं. If determining the biochemical nature of the genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and the deciphering of the genetic code were most challenging. Okay, देखेंगे बेटा कैसे हम केमिकल नेचर दोनों के डिटरमाइन करेंगे इन ए वेरी ट्रू सेंस. इट रिक्वायर्ड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, biochemist and genetist. It was George Gamow, most important. One second. George Gamow, a physicist who urged that since there are only 4 bases and they means there are only 4 bases, either DNA or RNA. DNA have adenine, guanine, thymine and cytosine, and RNA have adenine, guanine, uracil and cytosine. Only one change, but there are only 4 nitrogen bases in each nucleic acid. Okay, so here 4 bases, and if they have to code for 20 amino acids, the code should consist of a combination of bases. तो बेटा क्या होगा, जो 4 बेस हैं ये 4 बेस का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस बनता है जिसे 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं. द कोड शुड कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अ बेसेस. He suggested that in order to code for the 20 amino acid, the code should make up of 3 न्यूक्लियोटाइड्स. मीन्स ईच कोड इज मेड अप ऑफ, जो बेटा हमने आपको बहुत पहले बता दिया, तो जॉर्ज गैमो ने बेटा क्या बताया कि ईच कोड इज मेड अप ऑफ
3 nucleotides, and above 3 nucleotides or 3 nitrogen bases. This was a very bold proposition because a pre-mutation combination of 43 into 4 into 4 would generate 64 codons. Okay, 64 codon. How these 64 codons are formed, we will discuss later. Okay, so we can say that generating many more codons that required, providing proof that the codon was a triplet. Always remember, codon always in the form of triplet. जैसे बेटा हमने क्या बोला, 3 नाइट्रोजन बेस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट. was a more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khurana. Remember, Hargobind Khurana also discovered the first और स्टार्टिंग कोडान दैट इज कॉल्ड इज मेथियोनिन. सबसे पहले बेटा हरगोविंद खुराना ने ही स्टार्टिंग कोडान को डिस्कवर किया था. सबसे पहले इन्होंने ही अपने लैब के अंदर उसको डिस्कवर करके बताया था कि कौन सा टीआरएनए कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. और इनके बेटा अगर आपको चाहिए तो हरगोविंद खुराना की स्टोरी आप पढ़िए, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. कैसे वो इंडिया से पढ़ने के लिए गए फॉरेन, फिर जब इंडिया आए तब इंडिया में आने के बाद उनको एक पोस्ट ऑफिस के अंदर उनको एक पोस्टमैन की जॉब ऑफ़र करी गई. कहा आपकी डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है. फिर वो इंडिया छोड़ के चले गए, अमेरिका इंग्लैंड में रिसर्च करते रहे. लास्ट में अमेरिका में आकर के उन्होंने वो किया कि आज हम उनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं. हरगोविंद खुराना पहला इंडिया के साइंटिस्ट थे, उनको बायोलॉजी के फील्ड में इतना बड़ा अवार्ड मिला था. Hargobind Khurana was instrumental in the synthesis of RNA molecule with the definition combination of the bases, homopolymer and copopolymers. Marshall Nirenberg cell-free synthesis for the protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Servo Ocha enzyme was also helpful in the polymerizing RNA with the defined sequence in a template independent manner. Means here everything is template independent. बेटा यहाँ पे किसी भी एक टेम्पलेट, वैसे तो टीआरएनए को टेम्पलेट एज ए आरएनए चाहिए, लेकिन जो हमारा अमाइनो एसिड बनेगा वो हमेशा जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीपेप्टाइड चैन बनेगी वो हमेशा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट रहेगी. फाइनली चेकर बोर्ड फॉर द जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर विच इज़ गिवन इन द टेबल 6.1. देखो कैसे चेकर बोर्ड बनता है. 64 कोडॉन्स के लिए कैसे हमको बनाना है. वी कैन से दैट देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ कोडॉन. बेटा कितने कोडॉन हैं, तो हम कितने 1 2 3 4. तो बेटा पहले ऐसे 4 कॉलम बनाएंगे, थोड़े बड़े बड़े से बनाएंगे. इधर की तरफ भी 4 कॉलम बनाएंगे. ठीक है, हर कॉलम के पास UCAG ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे UCAG लिख देंगे 2 तरफ. तीसरी तरफ बेटा जो थर्ड पोजीशन होगी वहाँ पे हम चारों लिखेंगे UCAG, इसी मैनर में लिखेंगे. फिर UCAG चारों ऐसे ही कॉलम में UCAG लिख देंगे. इसका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, कैसे बेटा करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख देंगे. फिर दूसरी बार इसका, फिर इसका और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख देंगे. फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख देंगे. 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख देंगे. अब बेटा हमने क्या देखा, जब पहला मल्टीप्लिकेशन किया UU फेनाइलएलानाइन के लिए और UUC भी फेनाइलएलानाइन के लिए होता है. UUA भी ल्यूसीन के लिए है और UUG भी ल्यूसीन के लिए है. वही हमने बोला था कि ये कोडान है. ठीक है, ये mRNA के ऊपर होगा. ये नाइट्रोजन बेसेस का बेटा क्या है, ग्रुप है. ये mRNA के ऊपर होगा और इसको रीड करेगा कौन, tRNA. और tRNA इसको रीड करेगा और tRNA के ऊपर क्या लगा हुआ होगा. अगर बेटा ये mRNA लाइन को हम mRNA माने, ठीक है, तो यहाँ पे अगर U था तो tRNA यहाँ पे आएगा और देखेगा, यहाँ पे रीड कर लेगा. तो tRNA के पास क्या होना चाहिए, यूरेसिल की जगह बेटा क्या होना है, एडेनिन. और उसके ऊपर एक mRNA, उसके ऊपर बेटा क्या लगा होगा, यहाँ पे अपने ऊपर जुड़े हुए आएगा एक अमाइनो एसिड फेनाइलएलानाइन और इसको छोड़ के चला जाएगा. फिर अगली बार कोड होगा, नया अमाइनो एसिड आएगा, उसको जोड़ देगा, नए अमाइनो एसिड को जोड़ देगा. धीरे धीरे बेटा क्या एक चैन बन जाएगी अमाइनो एसिड की. पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चैन. इसलिए बेटा इसको पॉलीपेप्टाइड चैन हम नाम देते हैं.
सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल बेटा। टोटल चेकर बोर्ड को टोटल 64 अमाइनो एसिड्स को बनाना अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए, आया है बहुत बार, तो बहुत सिंपल हो जाता है आपको, आपके लिए कुछ नहीं करना है। एक हमको क्या बना लेना है, ऐसे ही पूरा 1 2 3 4 बड़े बड़े से कॉलम बनाने हैं, 4x4 के कॉलम बना लेने हैं। और उसमें जैसे ही हमने बोला है एक तरफ बेटा क्या करना, फर्स्ट पोजीशन में चारों पे एक एक, सेकेंड पोजीशन में चारों में एक एक, और उसके बाद हर एक कॉलम में चारों को लिखना है, UCAG सबको लिख करके आपस में मल्टीप्लाई करते रहना, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे। सेकेंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सेकेंड हमारा ब्रश नहीं आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके बेटा ये ब्रश है, यहाँ पे देख लेते हैं। C फिर U के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर U के साथ, तो क्या बेटा CU, फिर C मल्टीप्लाई करेगा U के साथ में, और फिर बेटा किसके साथ में करेगा, C के साथ में, CUC। फिर C मल्टीप्लाई करेगा U के साथ में, फिर A के साथ में, CUA। फिर C मल्टीप्लाई करेगा U के साथ में, और फिर G के साथ में, CUG। तो बेटा हमेशा ये चारों किसके लिए होंगे, ल्यूसीन के लिए होंगे, ठीक है, ल्यूसीन। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और आपने देखा 3, उआ उगा उआग, यहाँ पे 3 यहाँ देखो दिख रहे हैं, UAA UAG स्टॉप। इनको बेटा हम नॉनसेंस कोडान और स्टॉप कोडान बोलते हैं। ये जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। कौन होते हैं, UAA UAG UGA, ठीक है। These 3 आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडान और स्टॉप कोडान, क्योंकि बेटा ये जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ भी वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडान और नॉनसेंस कोडान। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड यू विल रिमेंबर इट। सो आई थिंक दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आपको सिंपली इससे बेटा क्या करना है, अपने आप को 1-2 बार प्रिपेयर करना है, घर में 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है कि आपको पहले जो हमने मेथड बताया उस मेथड से कुछ भी नहीं देखना है, सब कुछ भूल जाना है। एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, और ऐसी बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाना है। UCAG बस याद रखना है। क्या याद रखना है कि 4 थे, UCAG याद रखना है। 4 इधर हमको बड़े बड़े से कॉलम बनाने हैं, 4 नीचे की तरफ बड़े बड़े से कॉलम बनाने हैं, और टोटल कॉलम कितने होने हैं, 16। और हर कॉलम के अंदर 4 कोड बनेंगे, 4 जेनेटिक कोड। मीन्स देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स। आउट ऑफ दिस 64 कोडॉन, 61 कोडॉन कोड फॉर सम अमाइनो एसिड्स। 61 कोडॉन्स किसी न किसी अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, and 3 codons that are don't code for the, they are unable to code for any kind of amino acid, we can say that किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेंगे। दैट आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। उनको हम नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप कोडॉन बोलते हैं। वो क्या होते हैं, UAA UAG एंड UGA। ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और आपको याद रखने हैं। तो बेटा ये पूरा चेकर बोर्ड 1-2 बार आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, और हम प्रॉमिस करते हैं अगर आप अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके बनाएंगे तो पहली बार में 100% ये सही बनेगा। ओके, द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड आर एज फॉलोज। बेटा क्या इसके फीचर्स होते हैं ये आज हम जरूर डिस्कस कर लेंगे। द कोडॉन इज ट्रिपलेट। बेटा कैसा होगा मतलब ट्रिपलेट, किसके फॉर्म में, 3-3 के फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ ना GCG। इट इज़ ऑलवेज फॉर द एलेनिन, ALA एलेनिन। 11th क्लास में हमने बेटा आपको 20 अमाइनो एसिड का 1 लेटर कोड, 3 लेटर कोड सब कुछ। अच्छा ऐसा करते हैं, एक वीडियो बेटा हम आज डेवलप करेंगे फॉर द अमाइनो एसिड्स कि 20 अमाइनो एसिड्स के लिए क्या क्या सिंगल लेटर कोड है और क्या ट्रिपल लेटर कोड है, क्या उनका पूरा नाम है। ये वीडियो आज हम एक अपलोड कर देंगे इवनिंग में। ओके, वैसे 11th क्लास के अंदर ये सारा कुछ है। फर्स्ट feature is the codon is triplet, 61 codon for the amino acid, 3 codon do not code for any amino acid, hence they are functional stop codon और nonsense codon। तो यहाँ पे एक टर्म और जोड़ लेंगे आप, nonsense codon। Next, some amino acids are coded many more than one codon, hence the codon is degenerate। मीन्स आप लोगों से क्वेश्चन आएगा वाई द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज और कोडॉन इज कॉल्ड एज डिजेनरेट इन नेचर, बिकॉज नंबर ऑफ कोडॉन देयर आर 61 कोडॉन एंड दिस 61 कोडॉन कोड्स फॉर 20 अमाइनो एसिड। दैट्स वाई सम ऑफ द कोडॉन कोड फॉर मोर देन 1 अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा, मीन्स कोडॉन्स, सम ऑफ द कोडॉन्स मीन्स सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर कोड फॉर मोर देन 1 अमाइनो कोडॉन से कह सकते हैं कि कोई अमाइनो एसिड बेटा क्या है, बहुत सारे कोडॉन से कोड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था UUU
UUC दोनों बेटा क्या कर रहे थे, दोनों फेनाइल एलेनिन को कोड कर रहे थे। तो बेटा क्या है, जब बहुत सारे कोडान है वो सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, इसकी मीन्स कोडान कैसा होता है, जेनेटिक कोड कैसा होता है, डिजेनरेटिंग होता है। थर्ड, द कोडान इज रीड इन mRNA in a contiguous fashion, there are no पंचुएशंस। ठीक है बेटा, इसका क्या होता है, एक जुड़ा हुआ, एक जुड़े जुड़े से कि हाँ इसके बाद यही कोडान आएगा, इसके बाद ये कोडान, इसके बाद ये कोडान, जो चेकर बोर्ड होगा उसके बाद हर एक कोडान का सीक्वेंस होता है कि इसके बाद ये आएगा। ये नहीं है कि हम सेकंड वाले कॉलम में हैं, हमने फोर्थ वाले कॉलम का उठा के इसमें कुछ रख दिया है, ऐसा नहीं होगा। द कोडान इज नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मीन्स ये है बेटा, एक कोडान AUG, अगर हम बात करते हैं AUG, तो आइदर AUG इन द केस ऑफ द यूकैरियोट, आइदर इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, आइदर इन द केस ऑफ प्लांट, चाहे बेटा यूकैरियोट के केस में हो, चाहे प्रोकैरियोट के केस में हो, चाहे वो प्लांट के केस में हो, चाहे वो एक अमीबा के केस में हो, अगर AUG है तो हमेशा वो मेथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। ओके, अगर UUU है तो बेटा वो हमेशा फेनाइल एलेनिल के लिए ही कोड करेगा। मीन्स इसका मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स यही है कि एक कोडान जिस अमाइनो एसिड के लिए है वो उसी को कोड करेगा, चाहे वो एनिमल के अंदर हो, चाहे वो प्लांट के अंदर हो, चाहे वो यूकैरियोट के अंदर हो, चाहे वो प्रोकैरियोट के अंदर हो, चाहे वो अमीबा के अंदर हो, चाहे वो ह्यूमंस के अंदर हो, वो हमेशा बेटा जो अमाइनो एसिड है पर्टिकुलर, चाहे वो हमारे अंदर जो कोड कर रहा है वही वो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी कोड करेगा। लाइक UUU कोड फॉर फेनाइल एलेनिन इन द केस ऑफ द यूकैरियोट, also UUU code for the phenylalanine in the case of the prokaryote. Some exceptions to this rule have been found in the mitochondrial codons, like mitochondria and chloroplast. We can say that they are semi-autonomous organs. So there are some exceptions for the mitochondrial codons and in some protozoans. AUG has dual functions. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, बार बार आपको बता रहे हैं, डुअल फंक्शन मीन्स इट इज ऑल्सो कोड फॉर द मेथियोनिन एंड ऑल्सो कोड एज ए इनिशिएटर कोडान। बेटा हमेशा जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो सबसे पहले जो tRNA आएगा वो इसी को स्कैन करेगा, इनिशिएटर कोडान। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वाई मेथियोनिन हैव डुअल फंक्शंस, या मेथियोनिन के अंदर कौन से डुअल फंक्शन होते हैं। तो डुअल फंक्शन मेथियोनिन ऑलवेज सो डुअल फंक्शंस। फर्स्ट इज code for methionine amino acid or AUG function is dual function codon. Dual function codon बेटा AUG कौन है, because of first it code for the methionine and second most important thing is that it is initiator codon. बेटा हमेशा पहला जो होगा अमाइनो एसिड वो मेथियोनिन ही होगा और उसको कौन कोड करेगा, कोडॉन AUG कोड करेगा। and important thing is that UAA, UAG and UGA, ठीक है, इसको बोलते हैं उगा, उआ एंड उवाग। These three are stop codons और terminator codons और we can also say that nonsense codon। और बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, nonsense codon भी बोलते हैं। terminator codon भी बोल सकते हैं, stop codon भी बोल सकते हैं और nonsense codon भी बोल सकते हैं। इसलिए बेटा 64 टोटल, and out of this 64, 3 are stop codons, hence total coding codons are 61 in a checkerboard. If following is the sequence of nucleotide in the mRNA, ठीक है बेटा, अगर mRNA के ऊपर सीक्वेंस जो नीचे दिया गया है वो है प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड बाय इट, बेटा क्या चेकर बोर्ड का हेल्प लेंगे और आप बताएंगे कि क्या है। जैसे हमने पढ़ा किसके लिए, मेथियोनिन, किसके लिए UUU फेनाइलेनिन, फिर से फेनाइलेनिन, फिर से फेनाइलेनिन, फिर से फेनाइलेनिन, 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 ठीक है। तो बेटा एक बार मेथियोनिन आएगा, बाकी हर बार फेनाइलेनिन आएगा। देखो ये उन्होंने बना के दिखाया है, ठीक है, ये बना के दिखाया है, ठीक है। आगे आप लोगों को इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आई थिंक एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर्स को अपलोड कर दिया जाएगा। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज like this video, subscribe my channel and also share this video with your friends. Okay dear friends.